دوستو، خوفناک اور نامعلوم مخلوقات اور جنات کا ہماری زمین پر ہونا ایک حقیقت ہے۔ بے چہرہ انسان اور خوفناک شکلوں کی چیزیں زیادہ تر پرانے تہہ خانوں، سرنگوں اور لاوارث جگہوں میں عام پائی جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی چند ایسی پراسرار چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں انسان نے اچانک سرنگوں اور تہہ خانوں میں موجود پرانے تالابوں اور مختلف ویرانوں میں دیکھا تھا۔ معلومات اور حیرت سے بھرپور اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں خوفناک باکس۔ ویڈیو میں نظر آنے والا یہ واقعہ دو دوستوں کا ہے جنہیں ایک خوفناک سرنگ کے نیچے ایک خوفناک باکس ملتا ہے۔ ایک دفعہ ہارون اور اس کا کزن چھٹیاں گزارنے اٹلی گئے تھے، جو آخر خوفناک تجربے کے ساتھ گھر لوٹے۔ واقعے کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ساحل پر جانے کے لیے یہ لوگ ابھی پیکنگ کر ہی رہے تھے کہ انہیں پڑوسی نے کورنیگلیا کے درمیان چھپے ایک خفیہ ساحل کے بارے میں بتایا۔ ہارون اور اس کا کزن بے تابی سے اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ 3 دن سفر کے بعد یہ دونوں پہاڑی کے کنارے پر موجود ایک لمبی سرنگ کے نیچے گھس گئے۔ گھسنے کے بعد آخر کار صبح سویرے یہ خوبصورت خفیہ ساحل پر پہنچ کر بہت خوش ہوئے۔ باقی سارا دن دھوپ میں گزارنے کے بعد بالآخر رات کا اندھیرا جھٹنے لگا۔ سیر سپاٹے کے بعد جب واپسی کا وقت آیا، ہارون اور اس کے کزن کو واپسی کے محفوظ راستے بھول گئے اور اس سرنگ پر منتقل ہونے میں ناکام رہے۔ خوش قسمتی سے ہارون کو سمندر کے کنارے نیچے دیکھنے پر سرنگ یاد آئی۔ یہ ایک سیاہ اور عجیب راستہ تھا، لیکن ان لڑکوں نے اس تک جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ سرنگ ہمیں اگلے شہر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ جیسے ہی یہ جوڑی سرنگ میں داخل ہوئی، ساتھ ہی ہارون کے کزن نے سرنگ کی ترکیب کا اندازہ لگانے کے لیے اپنے فون کی ٹارچ کو مختصر روشن بھی کر لیا۔ راستہ صاف نظر آنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بغیر کسی چارج کے فون پر بچ جانے والی آخری 1% بیٹری کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخر کار یہ دونوں اندھیرے میں بھٹک گئے۔ 20 منٹ احتیاط سے چلنے کے بعد دونوں لڑکے اپنے پیروں پر رک گئے۔ اندھیرے میں ان کے آگے ہلکی ہلکی سی آوازیں آ رہی تھی۔ ہارون کے کزن نے اپنے فون کی ٹارچ کو آن کیا اور جیسے ہی سرنگ روشن ہوئی، لڑکوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ مگر ان کو ایک عجیب چیز کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں ایک بڑا ڈبہ نما ڈھانچہ ملا جو سرنگ کے بیچ میں تقریباً ایک شپنگ کنٹینر کے سائز کا تھا۔ جیسے ہی ہارون اور اس کا کزن اس ڈبے کو قریب سے دیکھنے کے لیے اس تک پہنچے تو آخر کار ان کی روشنی کا آخری ذریعہ یعنی موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی۔ اب یہ لوگ مکمل اندھیرے میں ڈوب گئے تھے۔ اسی لمحے اچانک انہوں نے کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ ان کو محسوس ہوا کہ یہ کسی باکس کے اندر سے آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ننگے پاؤں باکس کے دھاتی فرش پر غیر فطری طور پر کچھ لوگ تیزی سے دوڑ رہے ہیں، جسے کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ڈبہ دوسری طرف سے کھلا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی کوڑا اور کپڑے بکھرے ہوئے تھے، جسے اشارہ ملتا تھا کہ کوئی وہاں رہتا ہے۔ لیکن اس کا کزن پیچھے مڑ کر دیکھتا اور سوچتا کہ مکمل اندھیرے میں ایک گہری سرنگ کے بیچ میں آدمی کیسے زندہ رہے گا۔ یہ گھبرا کر ہارون اور اس کے کزن نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا اور بھاگنے لگے۔ آخر کار یہ اس سرنگ سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وقت ضائع کیے بنا جلدی سے ہاسٹل کی آخری ٹرین پکڑ کر گھر پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں پانی میں کچھ عجیب چیزیں۔ سن 2000 کی دہائی میں دوپہر کو ایک مڈل کلاس کا طالب علم اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ان کے گھر کے قریب ایک لاوارث ہاسپٹل بھی تھا۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا خیال تھا کہ اس ہسپتال میں خزانہ چھپا ہوا ہے۔ آج ان دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ آج ہم اس ویران شدہ ہاسپٹل میں لازمی داخل ہوں گے۔ ہاسپٹل کے تمام دروازے بند تھے۔ جم اور اس کے ساتھی ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہوئے۔ یہ عارضی داخلی راستہ تھا۔ وہ پہلے کبھی اس خوفناک گہرائیوں میں نہیں گئے تھے۔ ہاسپٹل میں داخل ہونے کے بعد انہیں پتا چلا کہ اس کے اندر 4 فٹ گہرا گندے پانی کا ایک تالاب بھی موجود ہے۔ ان کے خیال کے مطابق کچھ عرصہ پہلے یہ پانی سیلاب کی وجہ سے تھا۔ بہرحال اس موقع پر یہ سب ڈبکیاں لگا کر بہت خوش ہوئے، حالانکہ ان کو پتا بھی تھا کہ یہ ٹھہرے ہوئے پانی سے بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہاتھ میں ٹارچ لیے جم اور اس کے 2 سیڑھیوں سے نیچے تہہ خانے میں چلے جاتے ہیں۔ ہر قدم پر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین لرزتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ کچھ شیلفوں
यूएफओ और जनरेटर की तरह नजर आने वाली चीजों को देखकर डर भी जाते थे। फौरी तौर पर जिम को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी साख्त पाँव ने खौफनाक पानी में खलल डाला और बाकियों ने उसका पीछा किया। आहिस्ता आहिस्ता ये पानी में आगे चलते गए और जैसे ही पानी उनकी कमर तक पहुंचा, जिम और उसके दोस्तों ने अंधेरे में कहीं से एक जबरदस्त छिड़काव सुना। ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ी चीज पानी में डूब गई हो। डर कर जल्दी से जिम के दोनों दोस्त वापस सीढ़ियां चढ़ गए। अब जिम को अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने अंधेरे तह खाने में कुछ सुना लाजमी था। कुछ देर पानी के तालाब में गुजारने के बाद अब इन दोस्तों ने फैसला किया कि वो अब पानी से बाहर चले जाते हैं। जिम और उसके दोस्त कुछ देर बाहर इंतजार करते रहे कि अगर कोई चीज पानी के अंदर हुई तो खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। जब कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने वही किया जो हर फिल्म हमें सिखाती है। अब ये सब दोबारा वापस पानी के अंदर चले गए थे। तहखाने की सीढ़ियों की चोटी पर एक बार फिर बैठ गए ताकि उस चीज की आवाज सुन सके। खामोशी से उन लड़कों में से एक ने अपनी टॉर्च को सीढ़ियों से नीचे फेंकने का फैसला किया ताकि नीचे जो कुछ हो वो इससे डर जाए। अचानक टॉर्च पानी में गिरकर बच गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लिहाजा उन्होंने एकदम शोर मचाते हुए पानी में छलांग लगाई। जब जिम ने अपनी टॉर्च को उनके आगे स्याह खाने के दलान में चमकाया तो उन्हें तालाब के आखिर में एक पुराना ढांचा नजर आया जो बड़े बेरलों की तरह दिखाई देता था और ये पानी पर तैर भी रहा था। अचानक एक और जबरदस्त छिड़काव के साथ ढांचा दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अब ये तीनों दोस्त वाकई ही इस ढांचे की वजह से डर गए थे। जिम और उसके दोस्त वहाँ से निकल जाने के लिए भागते हैं। इस डरावने वाकये के बाद अब उन्होंने कभी भी इस हॉस्पिटल में कदम नहीं रखा। दोस्तों अब बात करते हैं गोदाम में रहने वाला। मई 1951 में 4 बच्चों का एक गिरोह जिसमें 8 साला टूनी, 7 साला जिल और 10 साला एलियन एक गांव रॉबी में एक पुराने वैरान गोदाम की तलाश करने का प्लान करते हैं। जॉर्ज ने उस जगह के बारे में बड़े बच्चों से कहानियां सुनी थी। जैसा कि दूसरी जंग अजीम में गोदाम को मुमकिन तौर पर हवाई हमले की पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया था। चुनाचे जॉर्ज की क़ियादत में बच्चे गोदाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। खिड़कियां बंद होने की वजह से ज्यादातर रोशनी अंदर की तरफ नहीं आ रही थी। तब जॉर्ज के जहन में एक ख्याल आया। उसने अपनी जेब से माचिस की डब्बी निकाली और आग लगाने के लिए चारों तरफ देखा। उसे एक कटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा, कुछ अखबारात और सूखे पत्ते मिले और जब उसने अंधेरे को आग लगाई और जैसे ही गोदाम रोशन हुआ उन्होंने दीवार पर कुछ अजीबोगरीब ड्राइंग देखी। 1940 की दिहाई के लिबास में लोगों के नाकाबिले यकीन हद तक तफसीली खाकों से दीवार मुकम्मल तौर पर ढकी हुई थी, लेकिन ये मुतासर कुन तफसील नहीं थी जिसने बच्चों को मुतासर किया हो। दीवार के दरमियान उन्होंने एक और ड्राइंग को भी देखा जिसमें एक खौफनाक मखलूक को देखा गया था, जिसकी बड़ी और गोल आंखें, नोकदार कान, दांतों से जड़ा हुआ एक बड़ा मुंह और लंबे लंबे आज़ा थे। गोदाम की दीवार पर मौजूद ये खाका परेशान कुन पैगाम दे रहा था। अचानक जब बच्चों ने दीवार के एक बड़े सुराख से कुर्राहने की आवाज सुनी तो एक सायादार शक्ल चारों तरफ लपकी। बच्चों के मुताबिक ये एक अजीबो गरीब मखलूक थी जो अजीब खाके से मुशाबत रखती थी, जिसकी पीठ पर कीड़े की तरह का खौल था और पेट पर बटन जैसी आंखें। जैसे ही ये मखलूक आगे बढ़ी तो बच्चे चीखते हुए गोदाम से बाहर भागे। अंधे और घबराहट में ये सब घर भागे और घर आते ही उन्होंने इस वाक़े के बारे में वालिदैन को सब कुछ बताया। ना समझदार नाबालिग होने के नाते उनके वालिदैन ने एक लफ्ज पर भी यकीन नहीं किया। उसके बाद उसके वालिदैन ने ज़राए से ये नतीजा अख्ज़ किया कि बच्चों को मुमकिन तौर पर एक पागल कुत्ते का सामना करना पड़ा। वालिदैन को इससे मालूम हुआ कि अगर गोदाम वाकई दूसरे जंग अजीम में हवाई हमले की पनाहगाह का काम करता था तो लोग वहाँ छुप जाते थे। तो एक अनजाने फनकार की तरह दीवारों पर तस्वीरें बनाकर लोगों को महफूज करना पसंद करते थे। इस पुरानी खौफनाक इमारत में बच्चों के आने पर इस मकान की हकीकत का पता चल गया था। दोस्तों अब बात करते हैं केबल टाउन मॉन्स्टर। अगस्त 1978 अर्नेस्ट नामी एक 51 साला शख्स टोरंटो में एक गुमशुदा बिल्ली के बच्चे की तलाश में निकला था। बिल्ली का ये बच्चा उन्हें एक कूड़े के डब्बे से मिला था। अभी आदमी उसकी बीवी उसे पाल रहे थे और शुरू से ही शरारती होने की वजह से हमेशा घर से फरार होने का रास्ता तलाश किया करती थी। एक रात अंधेरे में अर्नेस्ट ने गली में कंक्रीट के एक गार नुमा सुराख से ठोकर खाई जो एक राहगीर बिल्ली के लिए छुपने की बेहतरीन जगह थी। अर्नेस्ट ने सोचा
देखता हूँ इस गहराई वाले सुराख के अंदर कौन सी चीज मौजूद है। अर्नेस्ट नीचे झुक गया और सुरंग में दाखिल हुआ, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गया था। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा कि उसमें कोई चीज हरकत कर रही है। अर्नेस्ट ने जो देखा इससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। घर में मौजूद कोई चीज इंसान नुमा शक्ल की थी। ये लंबी पतली थी। ये तकरीबन एक बंदर की तरह शक्ल की थी। इसके तेज दांत और नारंगी सुर्ख आंखें थी। साथ ही साथ ये सर मई खाल में ढकी हुई थी। अर्नेस्ट ने खौफ से उस वक्त देखा जब उस 3 फुट लंबे जानवर ने अपना मुंह खोला। ये गर्जने की बजाय बोला कि चले जाओ चले जाओ। खौफ से लरजते हुए अर्नेस्ट सीधा घर पहुंचा और अपनी बीवी को जो कुछ हुआ उसके बारे में सब बता दिया। उसकी बीवी के मुताबिक अर्नेस्ट कभी भी आसानी से डरने वाला नहीं था। कोई भी अर्नेस्ट पर यकीन नहीं कर रहा था। मगर ये इस मामले को लेकर जब मकामी अखबारनामा निगार को घर में ले गया, 20 मिनट घूमने फिरने के बाद अखबारी बॉस ने अपने फॉरमैन को नीचे आने की आवाज दी। ये आवाज का पीछा करते हुए सुरंगों में दाखिल हुआ। सर्द और अंधेरे में उसका फोरमैन कहीं नजर नहीं आ रहा था। खो जाने के डर से उसने उस वक्त तक वापस मुड़ जाने का सोचा, मगर इसका बॉस आगे बढ़ता रहा। आखिरकार एक अजीब तारीख कमरे में पहुंच गया जो बास्केटबॉल कोर्ट के साइज का था, जिसकी छत 20 फुट ऊंची थी। यहाँ हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज हकीकत ये थी कि जानवरों की खोपड़ियों ने फर्श पर गंदगी डाली थी। बॉस को अचानक धुएं की बू आने लगी और उसकी बेचैनी खौफ में बदल गई। उसको एक सीढ़ी मिली जिसके आखिर में एक बड़ा धाती दरवाजा था। एक मौका लेते हुए उसने उसे झटका दिया और उसके बाद ये खुल गया। उसके बाद सब खामोश हो गया। बॉस ने फौरन अपने फोरमैन को फोन किया कि वो उसे लेने आए। उसे बताया कि वो गुम हो गया है। उस दिन के बाद उसने दोबारा शहर के नीचे सुरंगों में जाने से इनकार कर दिया। तो तजस्सुस से भरी इस कहानी से ऐसे कई सवालात थे जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।